Hello friends, welcome to my channel Code Destination. As we are continuing this challenge, one code one day, and we are also taking topic array. And during this challenge, we are solving one question every day, and we are doing detailed analysis of that question. So let me start today's question. So today's problem is from Lead Code. Problem number 134, name gas station. It is a medium level problem, and first we will understand the problem, then we will try to solve in the brute force manner, then we will think about logic, how we can optimize this logic into the like big O of n complexity. So let me read the question. So we have a total n gas station along a circular route, and where the amount of gas at the ith index station is gas of I. Basically, this gas of I represent how many gas at the ith index, and this cost represent how many cost we will lose, like how many gas we will lose if we go from ith index to I plus 1 index. It is mentioned here, like car with an unlimited tank, like in the tank we can store unlimited gas, and it cost of gas travel from ith index station to I1 plus I plus 1th station. It will lose total amount of cost which is at the particular index of cost array. So from the example we can understood this problem, like if we start, like if we took this example. So I put here this example, and suppose I start from index 0. So initially we have capacity 1, and if you go from 0th index to 1 index, so it will total lose the capacity 3 minus 3. So I reduce minus 3, and at the second index it will gain 2 gas, 2 amount of gas. So total here we can see 0 amount of gas we have. So basically here we have 0 amount of gas. So basically we have not enough gas to travel in the next gas station. So basically from where we started from the 0th gas station, so we can't reach back to the 0th gas station. So 0, it can't be our answer. So basically we can't start from index station 0. So in this case it will check one by one each start point, like from where we can start, so that we can reach that particular index once we go in the loop. So from the explanation we can understood one positive case here, like if you start from 4, like index 3, so total initial capacity of gas is 4, and it will go from index 3 to 4. So it will like lose total cost of minus like 1 gas. So it is 4 minus 1, 3, and at the index of 4 it will gain the 5. So um, total capacity will be the 8. So from once it is here, so from here to 0th index, it will like lose total 2, because in the cost it is mentioned from that index, it will lose total 2 amount of gas, and in the next station it is gaining 1 amount of gas, so it is adding here. So total 7 amount of gas when it is here. And from here to here, like from 0th index to 1 index, it will lose total 3 amount of gas. So it is here 7 minus 3, and at this 1 index it will gain 2 amount of gas. So total 2 amount of gas it is adding to total 6 amount of gas if it is at the index of 1. And from 1, if it will go from index 1 to 2, so it will lose total 4 amount of gas. Here we can see, and at index 1, and at index 3 it will gain 3 amount of gas. So total 5 amount of gas if it is at index 2. And from index 2, it is mentioned that at index 2 it has total 5 amount of gas, and if it want to go from index 2 to 3, so it will lose total 1 amount of gas.
So 5 minus 1 4, so it can reach here at the index of 3 where it is started. So it is started from index 3 and it reach from index 3 to again index 3. So that's why that index, if it is that car is start, so it can successfully reach at the same index. So that would be our answer. So दिस इज़ द ऑल अबाउट क्वेश्चन. तो चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे इसका हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले सोच सकते हैं और कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ करना है. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत ही सिंपल है. हम इन वन बाय वन सभी इंडेक्स को स्टार्ट पॉइंट अज्यूम करेंगे और वहाँ से स्टार्ट करके हम पूरे लाइक कार को मूव करेंगे और उसका टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे कि क्या वो कार उस इंडेक्स अगर स्टार्ट करता है तो सेम इंडेक्स पे पहुंच पाता है कि नहीं, और कहीं अगर इन बिटवीन उसका कार कैपेसिटी माइनस लाइक ख़त्म होती है, नेगेटिव होती है, तो ये श्योर है कि उस इंडेक्स पे स्टार्ट करते हैं तो हम सेम इंडेक्स पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इन बिटवीन ये उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है. तो हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा. पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं और इसका कोड लिखते हैं, उसका जैसे हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे. ओके, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले साइज़ रख लेता हूँ अपने एरे का यहाँ पे और मैं इटरेट करूँगा एज यूजुअल I0 I लेस दैन I प्लस प्लस. फिर मैं क्या करूँगा, मैंने एक टैंक की कैपेसिटी ले ली जो इनिशियली 0 होगा और मैं क्या करूँगा, मैं टैंक इंडेक्स. ओके, तो बेसिकली हम जो ये लूप लगा रहे हैं इससे डिसाइड करेंगे कि हम किस किस इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ मैं इसे स्टार्ट मान लेता हूँ, तो हमारा ये स्टार्टिंग इंडेक्स होगा जहाँ से हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं अपने. और हर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लूप को पूरा रन कर रहे हैं, तो मैं एक यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ जो टोटल साइज़ ऑफ जो हमारा एरे की साइज़ है उतनी बार रन करेगा. तो अगर हम नेक्स्ट जो स्टार्ट पॉइंट होगा, आई थिंक वी कैन से नेक्स्ट या नेक्स्ट पाथ वी कैन सी. सो हमारा जो नेक्स्ट पाथ होगा वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो स्टार्ट का पाथ होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा उसमें नेक्स्ट इंडेक्स जोड़ेंगे, क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हर इटरेशन पे क्या करेगा ये उसमें इनिशियल इंडेक्स में जो एक्स्ट्रा इंडेक्सेस होंगे उसे ऐड करते जाएगा. तो इस तरह हम मॉड लेंगे यहाँ पे. तो मॉड लेने से क्या होगा कि सपोज़ अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ 0 1 2 3 4, तो हमारा अगर 4 इंडेक्स जो है स्टार्ट इंडेक्स है, तो 4 इंडेक्स के लिए हमारा अगर ये लूप रन करेगा तो I0 होगा, तो 4 के लिए तो नेक्स्ट पाथ 4 ही होगा. बट अगर I की वैल्यू 1 होती है तो 4 प्लस 1 5 होगा. तो 5 के लिए हमें इस इंडेक्स 0 पे आना है, तो 5 मॉड लेन की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 मॉड 5 0 होगा. तो बेसिकली अगर हमारा इंडेक्स यहाँ से इधर हमें लाना है सर्कुलर मैनर में तो हमें ये मॉड लगाना होगा. तो बेसिकली उसके लिए हमने यहाँ मॉड लिख लिया है. ओके, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स मिल गया और हमें इस लूप के थ्रू हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, बेसिकली जहाँ से स्टार्ट किया है अब कार को, तो उस कार के लिए हमें सारे कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टैंक है उसमें कैपेसिटी ऐड करते जाएंगे. तो कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पाथ के लिए, आई कैन टेक नेक्स्ट पाथ, नो नेक्स्ट इंडेक्स वुड बी नाइस. सो नेक्स्ट इंडेक्स आई कैन टेक. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गैस का जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा माइनस करेंगे जो टोटल कॉस्ट हमारा उस इंडेक्स के लिए लूज़ कर रहा है. तो इस तरह हम टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे टैंक की. बट हाँ, अगर उस स्टार्ट पॉइंट के लिए अगर कहीं भी इन बिटवीन कैलकुलेशन में अगर वो टैंक की कैपेसिटी हमारी क्या होती है ख़त्म हो जाती है, इट मीन्स अगर ये लेस देन 0 होती है तो ऑब्वियस है कि उस पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम रीच नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट इज पॉसिबल. तो ये इज पॉसिबल स्टार्टिंग में मेरा 1 रहेगा. तो जैसे ही नेगेटिव आता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज
पॉसिबल को 1 कर लेता हूँ, तो इससे हमारा कंफर्म होगा। यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ लूप को कि हमारा अगर इस स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करें अपने कार को तो सेम पॉइंट पे नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ये होता है। और इसके बाद हम उस स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट किया है तो हम चेक कर लेंगे कंडीशन में कि अगर मेरा इज़ पॉसिबल इक्वल टू 1 है, तो अगर ये पॉसिबल है तो उस केस में ही हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अपने जो स्टार्ट पॉइंट होगा ओके। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा ये रिटर्न, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या रिटर्न करना है हमें, -1 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टार्ट ये पॉसिबल हुआ तो हमने स्टार्ट रिटर्न किया, ओके दैट इज़ फाइन। और हमारा ये जो मेथड है इंट रिटर्न कर रहा है, तो अगर ये कोई पॉसिबल केस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे उस केस में, यहाँ पे हमने -1 रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हम रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या दे रहा है, अगर हमारा लेन, ओके हमारे लेन नहीं लिया है हमने, यहाँ पे एन लिया है तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। तो ओके, तो इस तरह हमने ब्रूट फोर्स लगाया यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे ओके ये रन नहीं हो रहा है, हम देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट से सभी इंडेक्सेस को लिया और टैंक की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ली। ओके, सो हम कोई भी अगर स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर टैंक की वैल्यू 0 होगी, और जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स होगा यहाँ से हम उसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, और हमने गैस माइनस कॉस्ट से अपना टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करके टैंक में ऐड किया। और जहाँ भी टैंक अगर लेस देन 0 होता है तो हमने इस पॉसिबल जो था हमारा, ओके हमारा इस पॉसिबल यहाँ पे 0 होगा जैसे ही हमारा उस स्टार्ट पॉइंट के लिए अगर हम पॉसिबल नहीं है तो हमने यहाँ पे गलत लिया था, यहाँ पे हमें 0 इनिशियलाइज करना था, सॉरी उसे इनिशिएट करना था। तो यहाँ पे ये हुआ, ओके ओके दैट्स ओके। एक्चुअली यहाँ पे ये रिटर्न नहीं करना है क्योंकि ये 2 बार रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये वाला लूप हमारा अगर हमारा पॉसिबल हुआ तो हमें स्टार्ट रिटर्न करना है, और नहीं ये पॉसिबल होगा तो क्या होगा, ये लूप दोबारा रन होगा। तो यहाँ पे ये रॉन्ग था, हमने इसके अंदर रिटर्न कर दिया था, बाहर रिटर्न करना था ये -1 एक्चुअली। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है हमारा जो हम नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। तो हमने क्या किया, हम सभी इंडेक्स को स्टार्ट पॉइंट मारकर हमने पूरा ये जो कैलकुलेशन है किया कि इस स्टार्ट पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ तक हम दोबारा पहुँच सकते हैं विथ पॉजिटिव कैपेसिटी और नॉट। और अगर इन बिटवीन हमने कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिला तो हमने वहीं पे सडनली इस पॉसिबल को 0 किया कि नहीं पॉसिबल है उस स्टार्ट पॉइंट के लिए, अब ब्रेक कर दिया। और लास्ट में हमने चेक किया कि अगर इस पॉसिबल ट्रू है तो हमने स्टार्ट रिटर्न किया, और अदरवाइज रिटर्न -1 किया। और आप यहाँ सोच सकते हो कि यहाँ पे हमने सडनली जैसे ही इस पॉसिबल 1 है तो स्टार रिटर्न क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो आंसर होगा गारंटी यूनिक है। तो कोई भी अगर हम आंसर में एक आंसर मिलता है तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम सबमिट करके देखते हैं। ऑब्वियस है कि ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n)² है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। So let me submit and see what happened here. So yeah, it is giving time limit exceeded, which is accepted because we assume that. So यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हमारा स्टार्ट जो है 0 से n तक लूप रन कर रहा है, तो ये बेसिकली बिग O ऑफ n हुआ, सॉरी टोटल यहाँ पे n इटरेशन है, और ये लूप भी हमारा n बार रन कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे n इटरेशन है। तो ओवरऑल n इंटू n इटरेशन है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी इसकी, बिग O ऑफ n² हो गई।
तो ये बिग ऑफ एन स्क्वायर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कंस्टेंट में कि हमारा ये जो 10⁵ है, तो 10⁵ इंटू 10⁵ 10⁻10 हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। सो इसलिए टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है। तो हम सोचते हैं इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, और यहाँ से मैंने एक्सप्लेनेशन भी रिमूव कर दिया। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना मैं वाइट बोर्ड सेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम एनालिसिस करते हैं कैसे हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम किसी भी, मैंने एक दो एग्जांपल लिया है, जैसे कि हमारा ये जो गैस का वेरिएबल सॉरी डेटा है, मैंने उसको ABCD लिया है, और जो हमारा कॉस्ट का XYZ लिया है। तो हम मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिया है, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। तो मैं अगर 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी ये वैल्यू होगी, 1 से करता हूँ ये होगी, और 2 से करता हूँ तो ये वैल्यू होगी। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि टोटल जो गैस की वैल्यू आ रही है वो तीनों केस में सेम आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये सेम आ रही है। तो बेसिकली हम इसे क्या श्योर हो सकते हैं, तो जैसे कि पता है आपको कि अगर इसकी वैल्यू जो होगी, मैंने इसको TG डिनोट किया है, अगर लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है, इट मीन्स हम किसी भी इस एरे के इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट करें तो बेसिकली उस सेम इंडेक्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इससे ये श्योर हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि इस केस में हमारा कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो हम किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो ये ओवरऑल वैल्यू आ रही है ये सेम आ रही है तीनों केस के लिए। तो ऑब्वियस है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट कर लें, हम सेम इंडेक्स पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिकली कॉर्नर केस हुआ, यू कहें हम बेस केस हुआ, जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा अगर ये टोटल वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा इस एरे में कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये पॉजिटिव है तो इस केस में दो केस हो सकता है कि इन बिटवीन हो, जो हमने कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लिया हो, इन बिटवीन हो सकता है कि वो पूरा पॉजिटिव रहा हो कैलकुलेशन के दौरान। बट ये भी हो सकता है कि हमने सपोज़ यहाँ B से स्टार्ट किया और यहाँ पे जाते जाते ये नेगेटिव नेगेटिव था, बट सडनली यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इस बिहाफ पे हम बता नहीं सकते कि किस इंडेक्स पे डाटा जो हमारा आंसर है पॉसिबल है कि नहीं है। बट हाँ, अगर ये नेगेटिव होता है तो इस बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि डेफिनेटली हम ये श्योर हैं कि हमारा जो आंसर है कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम, तो इस केस को तो हम समझ गए। दूसरे केस को हम देखते हैं डिटेल में। तो दूसरे केस में सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि और हमें ये भी पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये ज़ीरो, जो हमारा एरे के इंडेक्सेस है ये इन्हीं इंडेक्स में से एक वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंडेक्स लिख दिया है जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैं अगर ABCD मैंने अगर ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा, तो सपोज मैं D पॉइंट पे हूँ और मेरा जो डेटा है वो पॉजिटिव है, और जैसे ही मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ता हूँ यहाँ पे, सपोज मेरा यहाँ पे D के बाद एक और वैल्यू है, E वैल्यू है इन द केस, अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ तो मैंने E वैल्यू लिया और देखा कि जैसे ही ये नेगेटिव वैल्यू होता है, इट मीन्स ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये इन सारे पॉजिटिव वैल्यू को क्या कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि अगर इस इंडेक्स तक इस वैल्यू, जहाँ तक हमने ये वैल्यू जोड़ा था तो यहाँ तक ये तो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। जैसे हमने ये माइनस एक वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ा नेगेटिव वैल्यू, उससे क्या हुआ, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गया। इसमें इट मीन्स इस इंडेक्स तक हम क्या कर सकते हैं कि वो जो हमारा कार है वो पॉसिबल है कि अगर इन इंडेक्स पे स्टार्ट करें तो सेम इंडेक्स पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू हमारा सपोज़ अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये जस्टिफाई करता है कि हम इन सारे इंडेक्स में से कहीं से भी स्टार्ट करें, ए से 0 से स्टार्ट करें, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करें, 3 इंडेक्स से स्टार्ट करें, और वैल्यू नेगेटिव ही होगी। इट मीन्स जैसे ही वैल्यू नेगेटिव होती है किसी भी इंडेक्स पे, ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे ही किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है तो ये जस्टिफाई करती है कि उसके पहले कोई भी इंडेक्स से हम स्टार्ट कर लें, हम
सेम इंडेक्स पे नहीं पहुंच सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज इस केस में अगर मैंने ए से स्टार्ट किया था और मेरी यहाँ वैल्यू ई ऐड होने पे नेगेटिव हुई थी, तो ऑब्वियस है कि हम ए से स्टार्ट करके दोबारा ए पे नहीं पहुँच सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ए से स्टार्ट करके अगर यहाँ पे ई तक आए, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो गई, मेरी टोटल जो मेरी कैपेसिटी थी नेगेटिव हो गई। यहाँ पे कैपेसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम? कैपेसिटी बात कर रहे हैं, ये हमारे जो वैल्यू आ रही थी ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई। तो यहाँ पे हमने लिया वही एग्जांपल सेम। अगर यहाँ तक कैपेसिटी नेगेटिव हो गई तो ऑब्वियस है कि हम ए से स्टार्ट करने के बाद हम सेम इंडेक्स पे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारा इन बिटवीन ही डेटा नेगेटिव हो गया है। तो ये जस्टिफाई करता है कि हम बी से स्टार्ट करें, बी के इंडेक्स से स्टार्ट करें, सी के इंडेक्स से स्टार्ट करें या डी के इंडेक्स से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, हम एट द एंड उस इंडेक्स पे नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे? जैसे कि सपोज मैंने अगर बी से स्टार्ट किया तो हमारा टोटल वैल्यू क्या होगी? बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई। तो ऑब्वियस है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई अगर लेस देन ज़ीरो है, तो ऑब्वियस है कि उसमें से हमने क्या किया है, ये हमारा जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू और जो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा। ये वाली जो हमारी ओवरऑल वैल्यू होगी, और जो ये ओवरऑल वैल्यू होगी, ये ग्रेटर देन होगी इससे। तो ऑब्वियस अगर जो ज़्यादा वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं इस ई को और नेगेटिव आ रहा है, तो जब इसके कम वैल्यू से हम माइनस करेंगे ई को तो भी नेगेटिव ही आएगा। तो बेसिकली जिस इंडेक्स पे ये नेगेटिव वैल्यू आता है, हम यहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसके पहले कोई भी इंडेक्स हम स्टार्ट करें तो हम उस इंडेक्स पे दोबारा नहीं पहुँच सकते। तो इसी लॉजिक का हम यूज़ करेंगे कोड में, जिससे आपको ये लॉजिक और भी क्लियर होगा। तो मैं कोड स्टार्ट करता हूँ इसका ऑप्टिमाइज मैनर में, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लॉजिक वर्क कर रहा है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। तो पहले हमें जस्टिफाई करना है टोटल जो हमारी कैपेसिटी होगी वो, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ये जो टोटल कैपेसिटी है ये वाली, ये अगर नेगेटिव है तो हम ऑब्वियस है कि हमारा कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इस केस को पहले हम हैंडल कर लेते हैं। तो मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इनिशियल कैपेसिटी ले लिया, कार कैपेसिटी जो 0 है, और मैंने एक लूप लगाया इंट आई इक्वल टू 0 से गैस के लेंथ तक, और मैंने यहाँ पे कैपेसिटी में अपना कैपेसिटी ऐड करते गया, जो हमारा गैस का उस इंडेक्स पे वैल्यू माइनस जो हम कॉस्ट दे रहे हैं उस इंडेक्स पे, तो हमारा ये कैपेसिटी टोटल हुआ। तो अगर ये कैपेसिटी हमारी नेगेटिव आती है तो ऑब्वियस है कि कोई भी कहीं से भी हम स्टार्ट कर लें, हम उस इंडेक्स पे नहीं रीच कर सकते हैं, ऐसा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें हम। तो मैंने एक स्टार्ट ले लिया वेरिएबल जो सपोज 0 है, तो ओके, तो मैं यहाँ से ये लेता हूँ। तो मैंने एक लूप लगाया सेम एरे में, सपोज मेरा गैस का है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेरा जो टैंक की कैपेसिटी है यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज टैंक की कैपेसिटी जो स्टार्टिंग में 0 है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, पहले कैपेसिटी टैंक की कैलकुलेट करूँगा। तो मैंने कैपेसिटी कैलकुलेट किया, गैस माइनस आई एंड कॉस्ट, और हाँ, यहाँ पे जैसे ही हमारा अगर टैंक की कैपेसिटी किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हमारी टैंक की सपोज कैपेसिटी अगर 0 होती है, तो मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी ये नेगेटिव होता है, तो उस इंडेक्स के पहले तक हम कहीं से भी स्टार्ट करें तो हम उस सेम इंडेक्स पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रूव किया एल्गोरिथम, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हुआ होगा ith इंडेक्स तक, और उसे माइनस ई अगर ऐड हुआ होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ऑब्वियस है कि इनके बीच अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करें, तो बी से स्टार्ट करें तो बी प्लस सी डी माइनस ई ऑलवेज होगा, नेगेटिव होगा। तो हम कहीं से भी स्टार्ट करें, नहीं वैल्यू फुलफिल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट की वैल्यू होगी वो ऑब्वियस है कि उस इंडेक्स के पहले तक तो कुछ नहीं होगी, हाँ उसकी वैल्यू i+1 हो सकती है।
और इस केस में क्या होगा, हमारा जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो भी हमारा इनिशियलाइज जीरो से हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटी होगी तो जो जब नया नया हम स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी होगी वो इनिशियली ज़ीरो होगी। तो ये केस है, और यहाँ से हमारा जो स्टार्ट पॉइंट मिलेगा उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं इस अप्रोच से क्या ये रन करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, टैंक कांट गेट हियर, वाई, ओ ओके, आई यूज wrong variable name here. ओके, सो वी कैन सी हियर दोनों टेस्ट केस हमारे पास होते हैं, और इसे अगर हम सबमिट करते हैं तो ये एक्सेप्टेड है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 मिली सेकेंड ले रहा है, 95.59% ऑफ यूज़र बीट करता है। तो मैंने यहाँ पे जो सेम लॉजिक लिखा था उसे कोड में इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे सेम लॉजिक है हमारा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने जस्टिफाई किया कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो हम किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट करें तो हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हमने सडनली यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया था। बट अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू में ये हो सकता है, यहाँ पे दो केस हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू पहले पॉजिटिव रही हों, हम जो कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इन a-x प्लस ये जो वैल्यू हो, उसके बाद ये प्लस होने के बाद नेगेटिव हुई, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू हो वो इस पॉजिटिव वैल्यू से लेस देन हो, तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव हो। सो इस केस में भी यहाँ पे हमारा टोटल ओवरऑल पॉजिटिव मिल रहा है, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव तो आएगा, बट हम ये श्योर नहीं हो सकते कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करने पे कि ये यहाँ पे पहुँच पा रहा है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे कि किसी भी अगर इंडेक्स पे, जैसे कि अगर हम किसी भी इंडेक्स को एक अज्यूम किया है कि वहाँ तक हमारी जो कैपेसिटी है a+b+c+d है जो ग्रेटर देन 0 है। जब न्यू कैपेसिटी हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू जो होती है 0 लेस देन 0 होती है। तो हम यहाँ जिस इंडेक्स पे वैल्यू हम ऐड करने पे ये ओवरऑल नेगेटिव बन रहा है, उस इंडेक्स के पहले हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब हमारा उसके पहले जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारे स्टार्ट पॉइंट नहीं हो सकते, मतलब वहाँ से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो सेम इंडेक्स पे नहीं पहुँच सकते। तो हमने वही सेम चीज़ यहाँ पे किया है कोड में। हमारा जैसे हमने पहले टैंक की कैपेसिटी कैलकुलेट करते गए हैं उस 0th इंडेक्स से, जैसे ही जिस इंडेक्स के लिए ये टैंक की कैपेसिटी नेगेटिव आई है, तो हम जान गए कि उसके पहले जितने भी इंडेक्स हैं वो स्टार्ट नहीं हो सकते, मतलब वहाँ से हम स्टार्ट करें तो हम सेम इंडेक्स पे नहीं पहुँच सकते। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा i+1 होगा, और हमारी जो नेक्स्ट कैपेसिटी होगी टैंक की वो 0 हो जाएगी। तो सेम सिंपल लॉजिक मैं लगाया यहाँ पे। और बट ये, हाँ, हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लूप यूज़ किया है, तो ये बीगो यहाँ पे एन इटरेशन है तो बीगो ऑफ एन होगा, और ये भी एन इटरेशन है। इट मीन्स गैस की साइज़ का नंबर ऑफ गैस लेंथ साइज है, गैस के लेंथ का साइज़ है, तो यहाँ पे बिगो ऑफ एन होगा। तो टोटल बिगो एन इटरेशन प्लस एन इटरेशन है, तो टोटल बिगो ऑफ टोटल यहाँ पे क्या होगा, बिगो ऑफ 2 इंटू एन होगा। एंड एट द एंड वी कैन इग्नोर कांस्टेंट, सो बिगो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये हुआ, और जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है, वेरिएबल यूज़ किया है, तो बिगो ऑफ 1 होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कैसे हम जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था बिगो ऑफ एन स्क्वायर था, यहाँ पे हमने इसे कैसे लॉजिक बिल्ड किया और बिगो ऑफ एन में से सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लॉजिक एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए एंड इसे शेयर करिए। जैसा कि आप जानते हैं हम ये चैलेंज स्टार्ट किए हैं, तो हम डेली एक क्वेश्चन डालेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।